सो टुडेज टॉपिक इज आइसोथर्मल एंड एडिएबेटिक प्रोसेस। देखिए ये दोनों टॉपिक हम लोग पीछे वाले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें डेफिनेशन और उनका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो सिर्फ हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोथर्मल प्रोसेस? मीन्स थर्मल मीन्स टेम्परेचर, iso means remains constant. So a process in which the temperature remains constant means temperature neither increases nor decreases throughout the process, then the process is known as isothermal process. So what is to be written in the definition? That is, when a system undergoes a physical change under the condition that the temperature of the system remains constant, such a process is known as isothermal process. You do not have to prepare the example of isothermal process. Okay. Now, what is the mathematical form of isothermal process? First of all, we have to match the isothermal process with a well-known law that is called Boyle's law. What does the Boyle's law says? That if the temperature remains constant, then the volume of the given mass of a gas is always inversely proportional to its pressure. And in isothermal process, temperature remains constant. So means isothermal process based on Boyle's law. And Boyle's law in mathematical form represented by PV is equal to constant. Sometime it is written as PV is equal to K. K is called constant. Got? So mathematical form of isothermal process is PV is equal to constant or PV is equal to K, and it is based on Boyle's law. Then adiabatic process. See, what do you mean by adiabatic process? A process in which exchange of heat from the system or to the system does not take place. Means a process in which heat energy remains zero throughout the process is known as adiabatic process. So when a system undergoes a change under the condition that no exchange of heat takes place between the system and the surrounding, then such process is called adiabatic process. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना सिस्टम को हीट दी जाए, ना सिस्टम से हीट निकले, ना इंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो उस प्रोसेस के दौरान, उसको हम लोग कहते हैं एडिएबेटिक प्रोसेस। एडिएबेटिक प्रोसेस में हीट मतलब Q जीरो रहेगा, जो भी चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होगा। ये प्रोसेस बेस्ड होता है पॉइजन्स की थ्योरी पर, पॉइजन्स लॉ पर। ठीक है। सो पॉइजन्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम. So this is Poisson's relation, that is PV raised to power gamma is equal to constant. Now we know very well PV is equal to क्या होता है? Is equal to RT for 1 mole of gas. R is a constant, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हम V is equal to देखें, that is RT upon P. If instead of P is equal to P is equal to RT upon V, and if this relation is carried forward here, then what would happen? Instead of P we can put RT upon V, and V की power gamma is equal to constant. When V goes up as a numerator, its power will change to the negative. Then R is a constant divided by the constant, that is constant. So it means T V की power gamma minus 1, that is a constant. This is another way to express the adiabatic process or adiabatic change. Now the third way, suppose that if we put V is equal to RT upon P, in this equation in first, so PV raised to power gamma is equal to constant. Instead of V we can put RT P की power gamma. P will carry forward to the denominator, then R is a constant brought to the constant, then it is equal to constant. So means R is a constant, so here R you may remove. So T raised to power gamma upon P raised to power gamma minus 1 is a constant. So there are 3 ways to represent adiabatic change. Okay. Now work done by an ideal gas in isothermal process. See, in isothermal process temperature remains constant. Suppose that the gas is carried from volume V1 to volume V2. We have to calculate the work done on the gas or by the gas.
सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 P dV, dV डिफरेंशियल फॉर्म जो हमने बताया था आपको, सो दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V2 अपॉन V2 V1 P dV। अब हम इसको इंटीग्रेशन इसका लेते हैं, तो देखिए P की अगर हम, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर हम उस कांस्टेंट की जगह K रख दें तो क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज K अपॉन V। अब इस एक्सप्रेशन में P की जगह रख दें K अपॉन V, तो देखिए, और एक चीज और है, दैट इज अगर हम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह ये रखें म्यू आर टी, सो दैट इज म्यू आर टी। अब म्यू आर टी में अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर टी अपॉन V, तो हम ये चीज रखेंगे यहां पर। सो W इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 म्यू आर टी अपॉन V dV। म्यू इज अ कांस्टेंट, R इज अ कांस्टेंट, आइसोथर्मल में T भी सेम रहता है तो T इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो किसी भी इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो उसको बाहर लिख देते हैं, तो क्या आया, म्यू आर टी बाहर लिखा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन V। अब देखिए ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, दैट इज इक्वल टू log x। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू आर टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV क्या होगा, log V। अब इसको हम लोअर और अपर लिमिट से कंपेयर करते हैं, लोअर लिमिट है V1, अपर लिमिट है V2, तो ये क्या होगा, V2 माइनस V1, तो log V2 माइनस log V1 को हम क्या लिख सकते हैं, log V2 अपॉन V1। यहां पर अगर हम log V रखते हैं और लोअर लिमिट और अपर लिमिट कंपेयर करते हैं V1 और V2, तो एक बार लिखेंगे log V2, अपर लिमिट पहले लेंगे, माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, दैट इज log V1। log V2 माइनस V1 क्या होता है, log V2 माइनस log V1 बराबर क्या होगा, log V2 अपॉन V1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना, W इज इक्वल टू म्यू आर टी log V2 अपॉन V1। अब हम जानते हैं क्योंकि P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। अब अगर हम रेशियो ले लें V2 अपॉन V1 बराबर क्या होगा, P1 अपॉन P2, तो इस एक्सप्रेशन में हम दूसरा एक्सप्रेशन ऐड कर सकते हैं, दैट इज म्यू आर टी log P1 upon P2 means the work done by an ideal gas in isothermal expansion that is equal to mu RT log base E V2 upon V1 और mu RT log P1 upon P2। अब हम mu RT को वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। देखिए अगर हम log base E की जगह log base 10 यूज करना चाहते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.3026 से, तो हमने log बेस E को हटा दिया और log बेस 10 कर दिया। ये बेस E के लिए फॉर्मूला है, बेस 10 पे हम कन्वर्ट कर देते, तो बेस 10 पे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.3026 से। सो W इज इक्वल टू क्या हुआ, 2.3026 म्यू आर टी log V2 अपॉन V1 और 2.3026 म्यू आर टी log बेस 10 P1 अपॉन P2। ये एक्सप्रेशन याद करना है। अब आता है वर्क डन by an ideal gas in adiabatic expansion। adiabatic expansion मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सेम वही चीज है, गैस को वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक एक्सपेंड करते हैं, तो हमें वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए वर्क डन का, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 V2 P dV। अब हम लोग पॉइजन्स लॉ देखते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो वो क्या है, PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की जगह क्या लिख देंगे, K। तो हमारे पास P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K अपॉन V रेज टू पावर गामा या K V की पावर माइनस गामा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इंस्टीड ऑफ P वी हैव केप्ट दैट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 V2 K V रेज टू पावर माइनस गामा dV। K इज अ कांस्टेंट, K बाहर लेंगे। अब जब हमें सॉल्व करना है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर n dx, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस n dx। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस n माइनस 1 अपॉन माइनस n माइनस 1। ठीक, अब इस वैल्यू की जगह x की जगह हम x की जगह v रख देंगे और n की जगह गामा रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास यहां पे बनना चाहिए K
इंटीग्रेशन ऑफ v रेज टू पावर माइनस गामा dv कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आना चाहिए v की पावर माइनस गामा -1 अपॉन माइनस गामा -1 एंड इसको लोअर और अपर लिमिट से कंपेयर करते हैं, दैट इज v1 एंड v2। सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू k। देखिए गामा -1, ये माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा k अपॉन 1 माइनस गामा v की पावर -1 माइनस गामा। अब एक बार v की जगह हम v2 रखेंगे माइनस साइन लगाकर, दूसरी बार v की जगह v1 रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 1 माइनस गामा v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा। सो दैट इज इक्वल टू k हम अंदर ले जाते हैं और v2 की पावर 1 माइनस गामा को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 की पावर गामा -1 माइनस 1 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हुआ 1 अपॉन गामा -1 k अपॉन v1 रेज टू पावर गामा -1 माइनस k अपॉन v2 गामा -1। ठीक, अब हम k की वैल्यू यहां से रख देते, k इज इक्वल टू क्या था, pv की पावर गामा। सो w इज इक्वल टू क्या आया, k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p1 v1 की पावर गामा दैट इज p2 v2 की पावर गामा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1। तो जहां v1 है वहां हम रखेंगे k की वैल्यू p1 v1 की पावर गामा और जहां v2 है वहां रखेंगे p2 v2 की पावर गामा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, w इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1 p1 v1 माइनस p2 v2। इसी को अगर हम कंपेयर कर देते टेम्परेचर के फॉर्मेट में, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा म्यू आर T1 और P2 V2 बराबर क्या होगा म्यू आर T2। तो म्यू आर अगर हम बाहर ले लें इसकी जगह, P1 V1 की जगह रख दे म्यू आर T1 और P2 V2 की जगह रख दे म्यू आर T2, तो म्यू आर बाहर ले लेंगे तो W का एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा -1 ब्रैकेट T1 माइनस T2। ठीक, नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखिए कौन कौन से डिफरेंस याद करने हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा टी 0 रहता है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज रिमेन्स 0 मीन्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो होता है जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत रैपिड होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस बेस्ड है बॉयल्स लॉ पर जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस बेस्ड है पॉइजन्स लॉ पे। ठीक है, इसके बाद आता है इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इसमें आपको याद करना है सीपी और सीवी। तो देखिए पहले है सीपी हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी सीवी। The molar specific heat of a gas at constant volume is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius when the volume is kept constant। तो आप यहां से लिखोगे the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius when its volume is kept constant। किसी गैस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए होती है वॉल्यूम कांस्टेंट रखने पे, उसे कहते हैं सीवी। ठीक, रिप्रेजेंट करते हैं सीवी। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए और किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सीपी। अब इसमें आता है वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। देखिए सीपी में गैस एक्सपेंड होने के लिए फ्री होती है तो वर्क डन होता है, जबकि सीवी में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वर्क डन नहीं होगा। तो देखिए इसको सिंपल लिखेगा ऐसे, बिकॉज इन सीपी द गैस इज फ्री टू मूव सो देयर इज चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द टेम्परेचर चेंज, सो अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज इन वर्क डन इन कांस्टेंट प्रेशर। But in constant volume, the volume does not change, so the heat directly converted into internal energy. That is why Cp is greater than Cv. Next आता है relation between molar specific heat capacity Cp and Cv, Cp minus Cv. Cp minus Cv का relation मेयर्स फॉर्मूला भी कहलाता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग समझते हैं। देखिए मान लेते हैं पहले हम गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसका टेम्परेचर राइज कराते हैं। जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब वेट प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन होगा नहीं, तो जो भी हीट एनर्जी देंगे वो डायरेक्ट किस में जाएगा, इंटरनल एनर्जी में।
तो Q1 कितनी हीट एनर्जी दी, CV इंटू डेल्टा टी। तो Q1 बराबर क्या होगा, CV डेल्टा टी, क्योंकि हम जानते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी बदलती नहीं है, सॉरी इसमें वर्क डन होता नहीं है, तो सारी की सारी हीट किसमें चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। तो ये डेल्टा यू है एक्चुअल में। अब अगर गैस को एक्सपेंड करने के लिए फ्री कर दें तो क्या होगा, जो भी हीट एनर्जी देंगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक वर्क डन में, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जो कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में बढ़ी थी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई थी, CV डेल्टा टी। तो जो Q2 होगा सेकेंड केस में फॉर कांस्टेंट प्रेशर, उसमें जो हीट देंगे वो हीट होगी जो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दी प्लस वर्क डन। सो Q2 बराबर क्या होगा, Q1 प्लस W। W बराबर क्या होता है, P डेल्टा V। अब अगर हम वैल्यू रख दें, Q2 बराबर क्या होगा, CP डेल्टा T। तो CP डेल्टा T की वैल्यू Q2 की जगह रखो, Q1 की जगह रख देते हैं CV डेल्टा T और W की जगह रख देते हैं P डेल्टा V। तो देखिए P डेल्टा V बराबर क्या होगा, PV बराबर होता है RT, तो P डेल्टा V बराबर होता है R डेल्टा T। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R डेल्टा T। तो देखिए ये लिखा है P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। तो CP डेल्टा T इज इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T कट कर देंगे तो क्या होगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R और CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज द रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है आपको। ये चैप्टर खत्म हो गया और इसके न्यूमेरिकल नॉर्मल तरीके के आप कर सकते हैं। मोस्ट पार्ट जो है वो रिलेशन है बिटवीन CP एंड CV, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है।